Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Dr. Usman Abid, founder Determined Medicos. First of all, I welcome to all of you to this webinar, Navigating House Job at Aga Khan University Hospital, Karachi. In this webinar, basically, we will cover all the things related to house job, how to get house job at Aga Khan University. Special thanks to Dr. Aisha Arshad for sparing time for this meeting. She is doing house job at Aga Khan University Hospital. She will guide you through their experience. Now, I will hand over the meeting to Dr. Aisha. Over to Dr. Aisha. Kindly unmute yourself and start. Assalamu alaikum, everyone. This is me, Dr. Aisha. Currently, I'm doing my house job from Aga Khan, and I'm a graduate of CMH Kharia Medical College. Hope so I'm audible. Yes, ma'am. Okay. So, बच्चे, I will let you know the process and the things regarding why Aga Khan and what are the pros and cons and what will be required to prepare the test and stuff. So we begin by the first slide. डॉक्टर उस्मान प्लीज स्लाइड्स जो है वो नेक्स्ट करते रहेगा व्हेन आई से यू थैंक यू सो दिस इन दिस पर्टिकुलर टाइम वील टॉक रिगार्डिंग के इंट्रोडक्शन के बाय आ खान की जो बेसिक्स हैं कि जो इसने नेम क्रिएट किया है द वेरी ब्रीफ इंट्रो बट वेरी हैवी कि क्या क्या प्रोज हैं इसके अंदर व्हाई टू जॉइन एंड knowledge resources. We'll talk about the test regarding AKU. AKU got two steps to join for either residency या फिर internship. ठीक है, यहाँ पर खान में हम जो है house job word use नहीं करते. We use here the word internship और house officer term use नहीं होती. We use the term intern here. So I will let you know the knowledge resources and दो exams के जो step है, one is written and the other one is OSCE interview sort of exam and a slide information regarding how to fill out the form and if not AKU then what and tips and takeaway and a very brief question answer session at the end as well. Next slide, Dr. Usman. So introduction. So basically when we come to AKU, I will start by telling that AKU is ranked #1 medical university by Pakistan Medical and Dental Council by 2019. 2019 में एक survey हुआ था regarding all the medical colleges around in AKU, in Pakistan. So it has been ranked #1. ठीक है, and it is ranked among top 100 universities for clinical medicine and among the top 100 for public health in Shanghai ranking, global ranking, academic subjects 2019. So top 100 universities all over world is a very plus point to join AKU. Moreover, it is also ranked as top 5% of higher education institute globally. ठीक है, इसको जो है stellar award में मिला हुआ है 2023 में for its remarkable research work and all the excellence or maintenance of the infection control all over the world. ठीक है, और जो सबसे खास बात ये है खान में ज्वाइन करने की, ये सारी बातें मैं बता रही हूँ फॉर सीवी पॉइंट ऑफ व्यू दैट इफ यू डू योर इंटर्नशिप हियर एट खान तो फिर आपकी सीवी पे कैसे कैसे चीजें इम्पैक्ट करेंगी. ठीक है, फिर उसके बाद सीवी के अलावा मैं आपको बताऊंगी रिगार्डिंग प्रोफेशनल ग्रोथ. ठीक है, ये सब कुछ तो सीवी में इट्स अ वेरी 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 प्लस पॉइंट when it comes to that you have done your internship, residency या fellowship from Aga Khan because it is JCI accredited. ठीक है, पूरे एशिया में बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो JCI accredited है. ठीक है, तो Aga Khan is one of them. फिर इसके अलावा one of the very plus point of joining internship here is ACGMEI accreditation. It is a accreditation council for graduate medical education. आप इसको गूगल करेंगे ना ACGME तो इसका मतलब ये है AACME. ये वो है that after doing your internship या residency here you can directly apply for fellowship in US. ठीक है, US considers and accepts your internship and residency program here in from Pakistan. वरना overall you have to step 1 step 2 तो सब देते हैं, still you have to get a match and stuff. तो बात से get stuff. ठीक है, फेलोशिप तो बहुत दूर की बात है, वो तो अपने
प्रोसेस में और अपने सिस्टम में यूएस वाले एंटर भी नहीं होने देते। बट इफ यू हैव द रेजिडेंसी, स्पेशली यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स हैं जो ACCME एक्रेडिटेड हैं। जनरल सर्जरी है, ऑब्स गायनी, इंटरनल मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, पीड्स एंड चाइल्ड। ये कुछ फील्ड हैं जो एक्रेडिटेड है, और आप यू कैन डायरेक्टली एक्सेस टू फेलोशिप प्रोग्राम इन यूएस और रॉयल्स यूके में। ठीक है। और फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल जो है सर्वे, उसके अकॉर्डिंगली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। सो दीज आर ऑल बुकिश वाली बातें, बट या फॉर जस्ट फॉर सेक ऑफ स्टार्ट मैंने ये सारी बातें बता दी। नाउ कमिंग टू बीइंग मेडिकल पर्सन योर सेल्फ, आपको क्या चाहिए होता है एक इंस्टीट्यूट से। ठीक है। सो नाउ आई एम कमिंग टू प्रोफेशनल ग्रोथ। ठीक है। यहाँ पर जो है people from all over Pakistan are here, ठीक है, having grip on their particular field domain। हर किसी के पास इंटरनेशनल नेशनल वो डिग्रीज हैं, डिप्लोमाज हैं, दे हैव स्टेलर अवार्ड्स। ठीक है। तो नॉलेज मैन, एवरी अदर पर्सन इज अ मैन ऑफ नॉलेज हियर। तो यू कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन गेटिंग द एक्सपोजर। कुछ यूएस से आए हैं ट्रेनिंग कंप्लीट करके, someone doing there from मतलब ऑस्ट्रेलिया, everybody around is so well informed that you grow। ठीक है। अगर आपके आसपास हर किसी के पास बहुत अच्छी अप्रोचेस हों, बहुत अच्छी डिग्रीज हों, दे आर पासिंग वन आफ्टर अनदर एग्जाम, देन यू स्टे मोटिवेटेड। ठीक है। अगर आप आपके साथ भी एक एफसीपीएस हो, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ वो ही स्टेइंग हियर इन पाकिस्तान, इज नॉट डूइंग एनी रिसर्च वर्क एंड स्टफ, तो फिर यू फील मतलब कि हाँ ठीक है, आई एम गोइंग एट अ गुड पेस। बट व्हेन यू आर इन इंस्टीट्यूट लाइक AKU, आपको हमेशा लगेगा दैट देयर इज अ रूम फॉर मोर एंड मोर एंड मोर। तो ये सब चीजें ना विल इवेंचुअली टेक यू टू पॉइंट जहाँ पर यू जब कभी नाम लिया जाएगा तो यू विल बी रिकग्नाइज, ये हमने, ठीक है। सो स्लोली 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 नाउ वी आर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है। So far, any questions? Am I audible? Yes, Dr. Aisha. Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, तो now coming back to uh, apart from मतलब CV point of view से, there is a collaborative environment। मैंने just because I'm a graduate of CMH खारियां, तो I have a very thorough insight of how CMH works। ठीक है। वहां पर ना जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है ना, उसका दूसरे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से इतना कोलैबोरेटिव और इतना इंटरकनेक्टेड सिस्टम नहीं अवेलेबल होता। देयर एवरी डिपार्टमेंट इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर देयर इज अ वेरी कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। ठीक है। द पेशेंट कम्स, ठीक है, फिर वी रेज अ कंसल्ट। यहाँ पर ना सिस्टम इज नॉट लाइक अगर कोई पेशेंट है, उसमें हम लोग को नेफ्रोलॉजिस्ट दैट यूरोलॉजी में वो एडमिट हुआ, देन वी गॉट टू नो दैट ही इज अ केस ऑफ नेफ्रो, we can hand over the patient। The system is very collaborative, very fast, the environment is very supportive। So यहाँ पर the things work very differently and you can say कि interconnected chain like system। ठीक है। आपका पेशेंट है, ट्यूमर का केस है, ये पहले वो डिस्पेजिया के साथ आया, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जो आपने टर्म हमेशा बुक्स में पढ़ी होगी, एक पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं तो सिर्फ एक फील्ड देख रही है। डायबिटीज का पेशेंट है तो इंटरनल मेडिसिन का बंदा देखा है, विल रेफर दैट पेशेंट टू एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। अगर उसका पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से उसके कैल्शियम वगैरह डिस्टर्ब हैं, तो वो उसको ANT के पास जो है कर देगा। सो वी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है, वो सब एक एट अ टाइम एक पेशेंट केयर पे काम कर रहे होते हैं। सो द एनवायरमेंट इज वेरी कोलैबोरेटिव। वी गॉट पॉइंट ऑफ व्यूज एंड concerts from many different domains at a very, अगर वो कैंसर रिकवर नहीं हो रहा, हमने ट्रीट कर दिया सर्जिकल तरीके से सब चीजें, तो देर इज हीम ऑन्कोलॉजी, मेड ऑन्कोलॉजी। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर कराची में वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर नाइफ एज वेल, जो पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रहा। सो द इक्विपमेंट, ठीक है, इज वेरी वेरी अमेजिंग। रिसोर्सेज हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, बल्कि जो इन वीवो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हैं, ठीक है, और जो बहुत रेयर प्रोसीजर्स हैं, जो जीनो डाइफिनोटिपिक, आपने सुना होगा, बुक्स में हमने पढ़ा है ये गाइडलाइन और इधर उधर। बट आई हैव नेवर सीन एनी इंस्टीट्यूट परफॉर्मिंग दीज एग्जाम इन बैक इन पंजाब। तो लेकिन यहाँ पर हम देख रहे होते हैं लोगों के ये सब एग्जाम्स हो रहे होते हैं, वी फाइंड आउट कि हाँ ये एक नया किस्म का एक जेनेटिक डिसऑर्डर यहाँ पर डिस्कवर हुआ है। तो कमिंग टू वर्क लाइफ बैलेंस,
तो देखो वर्कलोड तो हर जगह पर ही ऑलमोस्ट बहुत hectic रहता है when it comes to residency and internship. But yeah, as compared to other institutes, we can say work-life balance is good because uh, domain defined है. Interns की duties enlisted हैं that the intern has to do these particular things और resident has to do these things. ठीक है, ऐसा ये यहाँ पर ये नहीं होता कि resident जो है if the resident is tired he hands over his task कि आप ये देख लें. You can eventually you have the power to say no here. आप कह सकते हैं this is your domain, you have to do it. I have these particular things to look out. जबकि when you are in other setups तो वहां पर ऐसा वर्क वो डिफाइन नहीं होता. तो आपके पास ये है कि दैट योर सीनियर सीनियर ऑन कॉल रेजिडेंट या वट एवर जो भी आपका सीनियर है वो आपको कह रहा है देन यू कांट से नो. तो यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस एंड द डिवाइडेड एवरीथिंग पर्टिकुलरली कि ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नो योर वर्क दे नो देयर वर्क सो एवरीथिंग कीप्स इन अ गुड बैलेंस. तो फिर आप कोई भी ओवरबर्डनाइज नहीं होता क्योंकि वर्क डिवाइडेड है. So when it comes to holidays, so we got timings of 7 in the morning till 5 in the evening. ठीक है, when you are not on call और जब आप कॉल पे होते हैं then it's like next day 12. ठीक है, और सैटरडे संडे ऑफ अगर आपकी कॉल है तो आप जाओगे अदरवाइज इट्स ऑफ. ठीक है, बाकी रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी देखें. whenever there is any particular disease or any particular management plan which is not being decided here कहीं पे भी so they are being referred here in AKU for the expert opinion. तो यहाँ पर जो जो लोग भी हैं दे आर एट दैट प्लेस कि उनकी बात की क्रेडिबिलिटी है. ठीक है, वट एवर दे आर सेइंग दे हैव अ पर्टिकुलर वर्थ एंड वेट इन देयर पॉइंट ऑफ व्यू. तो विच इज अ प्लस पॉइंट अगर आप यहाँ से इंटर्नशिप करते हैं. सिर्फ इंटर्नशिप क्या अगर आप इंटर्नशिप भी कर रहे हैं इवन देन योर सीवी स्पीक कि नहीं अगर आप कोई बात कर रहे हैं ना तो उसमें कोई वजन नहीं. ठीक है, एज फार एज द रेपुटेशन कम्स टू द पॉइंट तो मैंने आपको सारे प्लस पॉइंट बताए हैं कि यूएस विल कंसीडर यू, यूके विल कंसीडर यू. ठीक है, द एंटायर ये अरब एमिरेट्स विल कंसीडर यू. आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑस्ट्रेलिया बट इफ यूएस एक्सेप्ट यू तो व्हाई नॉट ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो फिर मतलब ये है कि यू आर बीइंग रिकग्नाइज्ड as a worthy medical trainee all over world, which is a very very plus point. ठीक है, so reputation is like 10 on 10. आपकी 7 star CV हो जाएगी. Everybody will say okay AKU. So ये है लेकिन the life doesn't end at AKU. I have seen many people working in other setups like in Punjab. ठीक है, sorry I couldn't recall इमरान खान का जो इंस्टीट्यूट है. Sorry I couldn't remember the name. They are equally good as AKU. ठीक है, सिर्फ AKU नहीं many other institutes are also very good. तो वहां से भी people have done their internship and then they have joined the residency program here. या फिर if they couldn't manage to get into the residency just because of any other financial या फिर you can say कि हाँ they can't change the location. ठीक है, वो अपने सेटअप में अपने घर के करीब करना चाह रहे हैं. They can't move to Karachi so they do the residency back in their particular place and join the fellowship program here. ठीक है, यहाँ पर आई हैव सीन रेजिडेंट ये लोग अपने रेजिडेंट को इंटरनेशनल प्रोग्राम से भी भेजते हैं. ठीक है, यूके में भेजते हैं, इटली में भेजते हैं, जर्मनी में. सो विच इज अ वेरी प्लस पॉइंट. आई डोंट थिंक सो कि कोई और इंस्टीट्यूट इस तरह की इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवा रहा है. ठीक है, तो यू गॉट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पेशलाइजेशन लाइक अब जैसे सीएमएच है ना. बस आई टॉक अबाउट सीएमएच खारिया क्योंकि मैंने उधर काम किया है. वी डू नॉट हैव पीडियाट्रिक सर्जन वहाँ पर. ठीक है, पीड सर्जरी का कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पर. ठीक है, होप तो डॉक्टर उस्मान डू यू हैव पीस सर्जरी इन योर सेटअप. No, Dr. Aisha, peer surgery is only available in CMH Pindi and CMH Lahore. ओके, तो यहाँ पर जो है ना देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पीस सर्जरी, पीड्स ईएनटी, पीड्स यूरोलॉजी. मतलब एक तो पीड्स सर्जरी हो गई ना बात कि चलो ठीक है, लेकिन दे हैव पर्टिकुलरली कि पीड्स सर्जरी में भी दे हैव स्टार्टेड इंडिपेंडेंट यूरोलॉजी में यहाँ पर काम हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर न्यूरो सर्जरी में पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जन है, यहाँ पर पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिक ईएनटी हैं. अगर आप अभी गूगल करेंगे ना तो पीडियाट्रिक ईएनटी सर्जन आपको नहीं मिलेगा, एक ही यू के अलावा कहीं नहीं मिलेगा. ठीक है, सो देयर सो मच. आप यहाँ पर आके पूछेंगे ना कि जैसे हम अपने सेटअप में सीएमएच बहावलपुर में या खारिया में वट एवर वहां पर हम कहते हैं कि ना हमें न्यूरो सर्जरी पर रेफर कर दें. तो वो पहली बात तो ये है कि इट विल बी वेरी हार्ड. वो लोग आपको रेफर करेंगे टू पिंडी लाहौर इस तरह से.
लेकिन अगर चलो ठीक है, इन केस दे हैव द न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट, दे डू नॉट हैव स्पेशली फॉर एडल्ट एंड पीड, यहाँ पर न्यूरोसर्जरी की भी आगे डोमेन्स हैं, एडल्ट न्यूरोसर्जरी एंड पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी. So it's so vast that you will get confused कि भाई रेजिडेंसी और ये सारी प्रोग्राम किस चीज में किए जाएं. फैमिली मेडिसिन, मेड ऑन्कोलॉजी, आगे आगे स्लाइड आएंगे वेयर आई विल लेट यू नो कि कहाँ कहाँ रोटेशंस हैं, और उन्हीं उन्हीं रोटेशंस में दे हैव द प्रोग्राम्स ऑफ रेजिडेंसी एज वेल. ठीक है डॉक्टर उस्मान, नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, सो दीज आर द रोटेशंस अवेलेबल व्हेन यू विल ज्वाइन हियर. ठीक है, आपके पास 2 महीने यू कैन ज्वाइन वन ऑफ द इंटरनल मेडिसिन. ठीक है, 2 मंथ्स पल्मोनोलॉजी एंड 2 मंथ्स नेफ्रोलॉजी, ये वन ऑफ देम. ठीक है, 6 मंथ्स का इस तरह होता है, 2 2 मंथ्स का प्रोग्राम है. बाकी इसके अलावा इफ यू कैन स्वैप एंड गेट मोर एक्सपोजर यू वांट, तो आप म्यूचुअल स्वैप से आप यू कैन गेट एन एक्सपोजर ऑफ 6 इंटरनल मेडिसिन की फील्ड्स. ठीक है. Similarly, in surgery, we have neurosurgery, one of the very renowned, ठीक है, डॉक्टर अदहन, very well known. ठीक है. इसमें ऑर्थोपेडिक, कार्डियो, सीटीएस में डॉक्टर सौलत फातमी. मे बी आप लोगों ने वो टिकटॉक या फेसबुक वगैरह पे देखा होगा दैट डॉक्टर सौलत फातमी ऑपरेटेड ऑन अ पेशेंट. ठीक है. उसका कोई कार्डियक डिफेक्ट था, टॉप सब बच्चे को, when he was like 3 4 years. ठीक है, और फिर उसके बाद दैट पर्टिकुलर पेशेंट, उसका वो रिपेयर हो गया हार्ट, जिसको उन्होंने बताया था दैट यू नो यू हैव अ वेरी लो सर्वाइवल रेट एंड स्टफ. वो तो अल्लाह की भी मेहरबानी होती है, बेशक इसमें ये नसीब की बात होती है. बट दैट पर्टिकुलर पेशेंट यू नो grew up and he joined residency here in CTS, cardiothoracic surgery. Now he is the primary resident of that, Dr. Saulat Fatmi. So you know, people come here for miracles, and miracles do happen here. So it's you know it's an institute of hopes. तो ये बात है. बाकी पीडियाट्रिक सर्जरी, यूरोलॉजी, ईएनटी. नाउ कमिंग टू ईएनटी. तो ऑल ओवर पाकिस्तान में जितने भी वोकल कॉर्ड के ट्यूमर्स हैं, फेरिंक्स के ट्यूमर्स हैं, ठीक है, लेरिंक्स के ट्यूमर्स हैं, ओपन लेरेंजेक्टमीज हैं, ठीक है, या फिर जो है सुप्रास्टानल, या फिर ये इस तरह की जो सर्जरी, जो weird किस्म के ट्यूमर्स हैं, they are all being referred from all over Pakistan here to AKU. I have rotated in ENT and I'm just you know amazed by the quality of the work they are doing. मतलब ये मैं बाकी का तो इतना जाहिर है, मेरे पास भी लिमिटेड एक्सपोजर है, आई कैन गो फॉर 2 मंथ. ठीक है, to any of them. So I have been to ENT, so it's just you know lit, amazing. ठीक है. तो बाकी अब देखें आप, व्हेन यू आर इन एनी अदर सेटअप, उनके पास होता है जनरल सर्जरी. ठीक है, कि आपने जनरल सर्जरी में 2 महीने रोटेट किया. इनके पास जनरल सर्जरी के आगे बहुत सारी डिविजन हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5. GS1 इज एब्डोमिनल सर्जरी, हेपेटोबिलरी है. ठीक है. GS2 इज ट्रॉमा सर्जरी. GS3 ब्रेस्ट एंड प्लास्टिक सर्जरी. GS4 इज कोलोरेक्टल. GS5 इज वैस्कुलर. So they have divided even the general surgery further in 5 domains. एंड नो अदर इंस्टीट्यूट, मुझे नहीं लगता कि कोई इंस्टीट्यूट इस तरह से है. बाकी जितने सेटअप्स का मैंने अभी तक चेकआउट किया है, उनके यही होता है कि भाई हमने 2 महीने जीएस में रोटेट किया है, फिर 2 महीने यूरोलॉजी में गए, 2 महीने एनटी या वट एवर जो भी. लेकिन इधर आप, इधर यू हैव पर्टिकुलरली वेल डिफाइंड कि आपने जनरल सर्जरी में पर्टिकुलरली किधर आपने काम किया. ठीक है. यू कैन गेट रेजिडेंसी इन एब्डोमिनल हेपेटोबिलरी सर्जरी, ट्रॉमा सर्जरी, ब्रेस्ट, प्लास्टिक, कोलोरेक्टिव, वैस्कुलर, an amazing sort of you know variety कि I have no words honestly. ये मैं 22 की नहीं करती या इसलिए कि that I'm here at AQ. I did a thorough research when I was at your age, or these all things inspired me that I have such a vast domain to look into, to look up to कि मैंने क्या क्या करना है. ठीक है. So next slide. So now coming to the resources, which is one of the you know part and parcel of today's lecture. तो बच्चे, द थिंग इज दैट कि मैं ना उस पर बिलीव नहीं करती कि ज्यादा पास पेपर से करें. ठीक है, ना मैंने खुद इतना पास पेपर स्टफ पढ़ा है. अगर आप लोग अपना जो फाइनल ईयर अच्छे से पढ़ रहे हो ना, अच्छे से यू आर डूइंग योर सर्चिंग, यू गोइंग फॉर क्लिनिकल रोटेशन, यू आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर्स, यू आर टेकिंग थियरी स्टफ एज वेल. ठीक है, मेडिसिन में भी आई हैव गॉन थ्रू ऑल, मतलब मैंने लोकल बुक्स भी पढ़ी हैं, इंटरनेशनल बुक्स भी पढ़ी हैं, बट माई मेन कंसर्न वाज नॉट यू नो पास पेपर्स. मैंने पास पेपर वाला बच्चा नहीं हूँ, मैंने पढ़ा है. कोई चीज अगर कोई है ना, तो आई हैव गोन थ्रू द टॉपिक. लाइक अगर मेडिसिन में दे टॉक अबाउट ईसीजी, ठीक है, सेमी नॉन सेमी मैनेजमेंट, द बेसिक स्टफ. ठीक है, एग्जाम इज वेरी बेसिक, इट इज नॉट, इट इज लाइक एमडी कैट. ठीक है, वेरी बेसिक.
बेसिक बेसिक चीजें पूछेंगे. यू शुड हैव अ ग्रिप ऑन द बेसिक थिंग्स. हर्निया, टाइप्स ऑफ हर्निया, ठीक है, मैनेजमेंट, ऐसे ये सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ऑफ गायनी, ठीक है. पीठ से मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आया था एज सच. लेकिन हाँ, वैक्सीनेशन से रिलेटेड आया था. लेकिन वैसे पीज आई डोंट थिंक सो दे ज्यादा कोई कंटेंट इसमें से होता है. इट्स मेनली मेडिसिन एंड सर्जरी, एंड 5 to 10 क्वेश्चन फ्रॉम गायनी ऑब्स. रेस्ट इज फ्रॉम मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है. तो सिर्फ पास पेपर्स पे रिलाई नहीं करना. अपनी तैयारी मेडिसिन और सर्जरी की अपनी कोर बुक, जो कोर्स आपका चल रहा है, उधर से करें. और फिर जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस आप पास पेपर से रिवर्जन करें. ऐसा नहीं करें कि पहले पास पेपर्स कर रहे हैं, सिर्फ वही कर रहे हैं और वो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट नहीं कर रहे. मैंने आई माय मेन गोल वाज टू प्रिपेयर फॉर द प्रॉफ, एंड मीनवाइल आई वाज प्रिपेयरिंग द पास पेपर्स. मैं गो थ्रू कर रही थी उनमें से. और देयर इज अनदर बुक आगे अगली स्लाइड पर. डॉक्टर खान, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So this is a book, Residency Way to Residence Way to Residency, RWR. ठीक है. एक इसमें ना AQ के जितने पहले एग्जाम्स हो चुके हैं ना, उसकी एक जो है, ये अपलोड नहीं होते. जो भी एग्जाम देकर आते हैं, दे टेल कि हाँ हमने ये दीज वर द MCQs, ठीक है. इट्स स्टूडेंट कंबाइंड डेटा जो इसके अंदर है. बट या इट्स गुड टू गेट एन आइडिया कि क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, ठीक है. दे आर नॉट वो नहीं होते कि बुकिश नॉलेज है कि ठीक है कितने परसेंट इन्फेक्शन हो गई हैं, कितने परसेंट ये हो गया, ठीक है. इट्स मोर ऑफ अ मैनेजमेंट, ठीक है. आपने क्या कर किस तरह से पेशेंट मैनेज किया, ठीक है. और अगर आपके पास ट्रॉमा का पेशेंट आया तो आप कैसे कर रहे हो. यू शुड रिमेम्बर ABCD, एयर ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ठीक है, इस तरह वाला. तो आपके पास कोई ट्रॉमा का पेशेंट आ रहा है तो फिर आप ब्रीदिंग पहले असेस नहीं कर रहे हो. यू हैव टू लुक फॉर एयर ब्रीदिंग, ठीक है. इस तरह के फिर वो ABCD ऑप्शन आएंगे. जस्ट लाइक योर मेडिसिन का पेपर, आपने एनालाइज करना है कि मैंने स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, ये ब्रीदिंग वाला स्टैंडर्ड फॉलो करना है. देन आई हैव टू लुक इवेंचुअली ब्रीदिंग, सर्कुलेशन. सर्कुलेशन पे आऊंगी, देन आई विल लुक कि कहाँ से ब्लीड हो रहा है, कितना ब्लीड हो गया, कितना ब्लड लॉस है, अब हाइपोटेंसिव तो नहीं है, शॉक में तो नहीं है. फिर आप बाद में शॉक को मैनेज करोगे. हम क्या लिखते हैं, ट्रॉमा का है भाई, हाइपोटेंसिव शॉक, ठीक है, फ्लूइड्स लगा दो. नहीं भाई, यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन दैट यू विल मैनेज बाय स्टार्टिंग विद एयर. तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आएंगे विच विल रिक्वायर मोर ऑफ योर IQ, ठीक है. देन योर स्टफ क्या, ठीक है, अब क्या मतलब पेट कुछ इस तरह के क्वेश्चन नहीं है. इट विल बी मोर ऑफ एमडी कैट स्टफ, ठीक है. नेक्स्ट. तो दिस इज द ड्राइव. मैंने वैसे डॉक्टर उस्मान को भी शेयर कर दिया. ही शेयर यू इन द ग्रुप. इसमें देयर इज डेटा रिगार्डिंग के सोर्सेज क्या हैं, पिछले पास पेपर्स क्या हैं, कौन से ईयर में क्या क्या आया था. सो इट विल हेल्प यू इन दैट, ठीक है. तो स्कैन कर लें एंड कीप इट, अदरवाइज जो है ना डॉक्टर उस्मान will share. So the topics to cover in medicine are like cardiology, pulmonology, gastroenterology. इसके अलावा भी there is a particular field. Uh, इसके अलावा भी I have shared a PDF. So Dr. Usman he'll let you know. उसके अंदर particularly define हुआ है कि cardiology के कौन से topics हैं, pulmonology के, neurology के. So he'll let you uh, have that PDF. Next slide, please. So in surgery you have to cover more of abdominal surgery, more of trauma. ठीक है, trauma के cases बहुत हैं, एक्सीडेंट के, इमरजेंसी. दी दिस विल बी मोर लाइक. और ऑर्थोपेडिक में वो जितने भी आपके फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है, जो भी आप कोर्स बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, ले ले तो इट्स वेरी हार्ड एंड एक्सपेंसिव. वो नहीं तो जो भी आप कोर्स बुक पढ़ रहे हैं, गो विद दैट. इसमें फ्रैक्चर जरूर आते हैं, फ्रैक्चर की मैनेजमेंट एंड स्टफ, ठीक है. और इसमें जो वास्कुलर सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड इफ नर्व सप्लाई गेट डैमेज, और उसके जो भी पॉलिसीज हैं वो सारी. नेक्स्ट. Okay, now coming to how to fill out the form. It's a very quick review. Next slide. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू द वेबसाइट www.aku.edu, ठीक है. वहां पर आप जाएंगे, यू विल रजिस्टर योरसेल्फ एंड मेक एन अकाउंट, ठीक है. जैसे एक ईमेल होता है, ठीक है. यू हैव टू गेट योरसेल्फ वेरीफाइड, ठीक है. दे विल गिव यू अ पासवर्ड जिससे आप बार बार जब भी व्हेन यू विल लॉग इन, दे विल आस्क फॉर योर ID, ठीक है. उसके बाद देन यू विल एंटर योर पर्टिकुलर पासवर्ड, ठीक है. फिर यू विल गेट द एक्सेस. फिर उसके बाद they'll ask कि आपने किस पर्टिकुलर फील्ड में अप्लाई करना है, फॉर इंटर्नशिप, रेजिडेंसी, फेलोशिप, वट एवर. यू हैव टू चूज वन प्रोग्राम, ठीक है. वन प्रोग्राम, वन एप्लीकेंट, ठीक है, वन एप्लीकेशन. अगर आप electives के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देन दिस इज अनदर स्टोरी. अगर इंटर्नशिप के लिए कर रहे हैं तो दिस इज अनदर स्टोरी, ठीक है. यू कैन चूज ओनली वन पर्टिकुलर, वन एट अ टाइम, ठीक है.
तो फिर you have to fill out the online application form. Online application form consists of three important parts. One is the profile, ठीक है, जिसके अंदर आपका पर्टिकुलर पर्सनल डाटा है, ठीक है, योर नेम, योर CNIC, होम, ठीक है, सब कुछ वो पर्सन है। फिर उसके बाद इज योर एकेडमिक डाटा, जिसमें आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स, सेकंड ईयर के, योर इंस्टीट्यूट, ईयर ऑफ पासिंग, ग्रेड्स हैं, मार्क्स हैं, GPA वटेवर, ठीक है, वो सब लिखना है। एंड थर्ड इज पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट इस पूरे फॉर्म में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो स्टेटमेंट आप देंगे कि वाई यू वांट टू जॉइन APU, जितनी स्ट्रांग आपकी वो स्टेटमेंट होगी, उतना उतने हायर चांसेस होते हैं टू जॉइन, ठीक है। उसमें आप अपनी सारी अचीवमेंट्स लिखेंगे, ठीक है, कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग द एंटायर जर्नी, ठीक है, मेडिकल लाइफ की भी, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल लाइफ, ठीक है, योर सोसाइटीज यू आर वर्किंग इन, ठीक है, योर वर्कशॉप, योर अचीवमेंट्स व्हाटसोएवर, जो भी है आपने उसके अंदर नोट करना है। एनी रिसर्च वर्क, एनी ऑडिट, या फिर जो एनी पब्लिकेशन, so these will add a plus point into your this online submission. Then you have two options to get it submitted, either by submitting uh, आप वो चालान निकालें या तो फीस पे कर दें या फिर आप ऑनलाइन पे कर दें, then it will get done and dusted, then you have to submit it, ठीक है। एप्लीकेशन फी इज 5,000 फॉर, मतलब ये 5,000 ही है फॉर इंटर्नशिप फेलो व्हाटसोएवर द प्रोग्राम इज, ठीक है। एक टाइमलाइन आपको डॉक्टर उस्मान ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। और जो इस साल की आएगी वो भी मैं डॉक्टर उस्मान को शेयर कर दूंगी, ही अपडेट यू इन द ग्रुप के लास्ट से जो 2023 का ये अपडेटेड है। तो वी हैव लास्ट ईयर लाइक 30th जून तक, ठीक है। तो आप अप्लाई करते हैं, then you go for an exam. Only 250 candidates go, over 2,000, 3,000 candidates apply for the written, and somehow 250 got shortlisted. From out of 250, they call for you multiple mini interviews, MMI, ठीक है। MMI के लिए they'll call you, फिर उसके बाद only 80 or 85 will get admitted to it. तो फिर वो जब आपका written exam clear होगा, then we'll have another seminar, ठीक है, जिसमें we'll let you know कि multiple mini interviews में क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये वो जो मैंने आपको बताया कि जो प्रोफेशनल, एक तो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, दूसरा आपका जो एकेडमिक इंफॉर्मेशन है, तो इस तरीके से आपने लिखना है, सही है। रिजल्ट वेटेड है या फिर रिजल्ट नहीं आया, या विच ईयर, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन इफ देयर इज नो सिस्टम ऑफ मार्क्स, तो फिर GPA ग्रेडिंग व्हाटएवर, PMC एनरोलमेंट नंबर आप अपने इंस्टीट्यूट से मांगेंगे एंड एंटर दैट, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, ठीक है। सो दिस वाज स्टेटमेंट जो मैं आपको कह रही थी, स्टेटमेंट आपने कितना से लिखनी है। फर्स्ट ब्रीफ इंट्रो ऑफ योर्स, आप कहाँ की ग्रेजुएट है, फ्रॉम स्कूलिंग कहाँ की है, और कॉलेज, फिर एकेडमिक एकेडमिक अचीवमेंट्स। मैंने तो अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स लिखी थी बिफोर med स्कूल एंड इन द med स्कूल, ठीक है। फिर उसमें मैंने आप बताना जरूर, बिकॉज AKU हैज अ वेट फॉर योर को करिकुलर, मतलब आप वर्कशॉप कितनी कर रहे हो, काम कितना किया आपने, एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन AKU। इसमें में यू नो जितना अभी तक मैंने आपको बताया, कीप इट वेरी सिंसियरली कि आपको क्यों ज्वाइन करना है, ठीक है। और ये एंड में वॉलंटियर वर्क जितना भी है, और रेफरेंसेस आपकी, बिकॉज आई डोंट नो, दे हैव कंसल्टेड द रेफरेंसेस जो मैंने दिए थे, तो आप वो देंगी। दे मे कॉल यू फॉर टू हैव अ लुक ऑफ मॉडर्न एथिकल वैल्यूज यू हैव इन here back up आपके इंस्टीट्यूट में जो भी। नेक्स्ट टाइम प्लीज, ठीक है। So this is just the completion of the form. Next slide. ठीक है। जैसे दिस इज डिक्लेरेशन, बिल्कुल फॉर्म के एंड में जो है ये आएगा, यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल एंड देन इट्स डन, इट्स कंप्लीटेड। So if not AKU, then what? So I will say that it's not the end of life. Of course, you have multiple other options, and there are multiple other ways to join. Not just internship, you can join for residency, and you can join for fellowship as well. You get to many other ways. You can end up here. Moreover, there are many other institutes जो इसी लेवल पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर खान, नेक्स्ट प्लीज। So yes, any questions? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। मैम जी। जब ये फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद हमें जो टेस्ट होगा वो क्या प्रॉक से पहले होगा?
PKU का जो अह, इंटर्नशिप? हाँ, प्रॉफ से पहले होता है, इट्स समवेयर इन अगस्त। आपके सेंडअप्स जब हो रहे होंगे ना, मोस्ट लाइकली इफ यू आर फ्रॉम नम्स, नम्स इंस्टीट्यूट में होते हैं। तो मैंने अपने सर्जरी के एग्जाम से पिछली रात, इट्स यूजुअली ऑन संडे एंड आई हैड माय सेंडअप्स का एग्जाम ऑन मंडे। तो फिर जो है आपके सेंडअप्स में फॉल करेगा। तो मैम फिर आने जाने का तो बहुत मसला हो जाएगा। देखिए, यू हैव टू गिव sacrifice, you have to struggle for what you want। तो मैंने भी ऐसे ही किया है। आई एम लिविंग इन खारियां। तो मैं सैटरडे को बल्कि संडे मॉर्निंग आई वेंट टू इस्लामाबाद, आई गेव द एग्जाम। उसी सेम डे आई वेंट केम बैक हियर, देन आई gave a very quick review to my surgery paper, और उसके बाद then I had my एग्जाम नेक्स्ट डे। हाफ प्रिपेयर, हाफ हाफ स्लीप, हाफ अ वीकेंड, लेकिन देना पड़ता है, ऐसे ही होता है यार। और मैम जो Can आपने बताई है तैयारी उससे करनी है या हमारी जो फाइनल ईयर की बुक्स हैं वही पढ़नी? देखें, पहली बात यह है कि आपको आपके फाइनल ईयर के जितनी भी बुक्स हैं उस पर बहुत अच्छा ग्रिप होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि एग्जाम उसमें से ही आता है। लास्ट ईयर जो है ना, जिन लोगों ने RWR किया था ना, सिर्फ RWR किया था, जो मैंने आपको बुक दिखाई बीच में स्लाइड्स में, उन लोगों का एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। आई नो पीपल जिन्होंने RWR के एक एक पेज, एक एक चीज की हुई थी, बट नॉट अ सिंगल MCQ वॉज फ्रॉम देयर।